જય જિનેન્દ્ર. વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ભદ્રેશભાઈ શાહ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સુરત જૈન યુવક મંડળ આયોજિત પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા 2023ના પહેલા દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન. મિત્રો, આપ જાણો છો કે પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાની સુરતથી ઓનલાઈન થતી આ શ્રેણીનું આ ચોથું વર્ષ છે. આપ સૌનું સ્વાગત કરવા માટે અને સ્વામી ભગવંતો અને મહારાજ સાહેબો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. તેમના આશીર્વાદ લઈને એમના વક્તવ્યો શરૂ કરવાના માટેની વિનંતી કરીએ. એ પહેલા આ કાર્યક્રમને માણનારા સૌ કોઈને વિનંતી છે કે કૃપયા આપનું માઇક્રોફોન આપના ઘરે બંધ રાખજો, કે જેથી આપણે આચાર્ય ભગવંતોને સાંભળી શકાય. હસમુખભાઈ, હું આપને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું, કૃપયા આપના માઇક્રોફોન બંધ રાખજો સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાનમાં, કારણ કે આજે આપણે સૌ શ્રોતાઓ છીએ અને આપણે મહાન વક્તાઓને સાંભળવાના છીએ. આપ સૌના સહકારની અપેક્ષા છે અને આમંત્રણ આપીશું શ્રી ભદ્રેશભાઈ શાહને, કે જેઓ તેમના માતા પિતાના ટ્રસ્ટ અને પરિવાર વતી, પોતાના ફાઉન્ડેશન વતી આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. ભદ્રેશભાઈ, આપનું હાર્દિક અભિવાદન છે. પ્રણામ, નમસ્કાર, જય જિનેન્દ્ર. આચાર્ય ભગવંતો, મુનિરાજ ભગવંતો, પ્રબુદ્ધ વિદ્વાન વક્તાઓ અને અતિ પ્રબુદ્ધ એવા શ્રોતાજનો કે જેઓ આપણી સાથે દેશ વિદેશથી જોડાઈ ગયા છે અને જોડાશે, એ તમામને આ ચોથી પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળાના આજના આ શુભ દિને તમામનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. આપણે આ વ્યાખ્યાન માળા શરૂ કરીએ તે પહેલા માંગલિક તો આપણે આચાર્ય ભગવંતનું ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત પરમ પૂજ્ય શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામીજી મહારાજ સાહેબનું લુધિયાણામાં જેઓ બિરાજમાન છે તેમનું માંગલિક મંગળ પ્રવચન સાંભળીએ. છતાં એક નાનકડી પ્રસ્તાવના આ વ્યાખ્યાન માળા તરફથી આપીને તરત જ હું સાહેબને 2 મિનિટમાં માઇક આપી દઈ અને પછી બાકીની વાતો આપણે પછી કરીને તરત જ 10 જ મિનિટમાં મોક્ષાનંદ વિજયજી મહારાજ સાહેબનું આપણે પ્રવચન શરૂ કરાવીશ, મને વિનંતી કરીશું એમને. તો મિત્રો, આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળા છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આપણે મુંબઈ અને અમદાવાદમાં ચાલી રહી છે. સુરતમાં નથી હજુ સુધી એવું થઈ શક્યું. તે છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે પ્રયત્ન કરી અને કોરોનાનો કાળ હતો ત્યારે ઓનલાઈન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એમાં સફળતા મળતા અને ઘણા બધા જોડાતા અને ઘણી બધી યુટ્યુબ ઉપર આખો વર્ષ જોવાતા અમને પ્રોત્સાહન મળ્યું અને તેથી તે શરૂ છે. તો હું આજે આપણી વચ્ચે પંજાબ કેસરી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત વિજય વલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પરંપરાના પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત ગચ્છાધિપતિ નિત્યાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ને કોટી કોટી આપણે સર્વે વંદન કરીએ. એમના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ અમારા પર કાયમને માટે ઉતરતા રહે સાહેબ. અને આપના મંગલાચરણ અને માંગલિકથી અમે આ શુભ પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળાની શરૂઆત છેલ્લા 2 વર્ષથી કરી રહ્યા છે. તો આ વર્ષે પણ સાહેબ, અને એ આખું આપનું માંગલિક ખરેખર બહુ મંગલ બની રહે છે. તો અમારા પર કૃપા ઉતારો, અમને માંગલિક સંભળાવો, આ વ્યાખ્યાન માળાનું મંગલાચરણ કરો. આપના ખૂબ આશીર્વાદો. મંગલાચરણ. નમો હરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ નમો
પછી પેલા મારી પાસે અપેક્ષા રાખે આમ હોવા પછી શું થાય મારી પાસે અપેક્ષા રાખે તો મને થાય એમાં હરેશભાઈ કઈ પ્રશ્ન લાગે છે ઓડિયોનો? ત્યાંથી લિંક તૂટી ગઈ છે નહીં. સાહેબજીની હું ફોન કરીને કહું. તમે હા એ પણ કરો, અથવા તમે નવકાર મંત્રનું તમે પઠન કરવાના હતા તે કરો, અથવા તમારી જે વાત અધૂરી છે તે કરો. સાહેબ જોડાય એટલે આપણે તરત એમને જોડી દઈએ. એટલે અત્યારે જોડાયા નથી સાહેબ? હા, નીકળી ગયા છે. અચ્છા. ઓમ નમો હરિહંતાણં. આવી ગયા છે સાહેબ. થઈ ગયા છે? ચાલો, સારું. અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા સિદ્ધાષ્ટ સિદ્ધિ સ્થિતા આચાર્ય જીન શાસનોન્નતિ કરા પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયારાધકા પંચૈતે પરમેશિન પ્રતિદિનમ પૂર્વન્તુ વો મંગલમ. નમો દુર્વારિરાગાદિ વૈરિવાર નિવારિ અર્હતિ યોગિના મહાવીરા અજ્ઞાન તિમિરાંધના જ્ઞાનાંજનશના કયા નેત્રમન્મીલિતં યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્मै ગુરુવે નમઃ. જ્ઞાનામૃતેન લોકાનાં કષ્ટોચ્છેદ વિધાયિને અયિદં યુગેન વિરાજ નમો વલ્લભસુરય. શ્રી જૈન યુવક મંડળ
सूरत के तत्वावधान में श्रीमती वीरमती बेन फकीर चंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन पर्यूषण व्याख्यान माला का आज से मंगल प्रारंभ होने जा रहा है। देश विदेश से अनेक ज्ञान पिपासु इस आयोजन में आमंत्रित गुरु भगवंतों तथा विद्वान मनीषियों के व्याख्यान श्रवण करके लाभान्वित होंगे। पिछले 3 वर्षों में इस आयोजन को जिस तरह से खूब सराहा गया, उसी तरह इस बार भी अवश्य ही सुंदर प्रतिसाद प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस आयोजन के जनक संघ गौरव श्री भद्रेश भाई शाह तथा उनके सहयोगी कल्याण मित्र श्री नरेश भाई कापड़िया, श्री जयेंद्र भाई मोरबिया आदि अनेक भाग्यशाली प्रतिवर्ष ऐसे विविध कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं से जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास कर रहे हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग इसमें सम्मिलित होकर समान भाव से विद्वानों के विचारों का श्रवण करते हैं। आपका यह आयोजन पूर्ण रूप से सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद, धर्मलाभ। ખૂબ ખૂબ આભાર મહારાજ શ્રી, અમે ગદગદ છીએ। ખૂબ આભાર સાહેબજી આપનો। લુધિયાણાથી આપે આટલી કષ્ટ વેઠી ને અમને જે આ મંગલાચરણ છેલ્લા 2 વર્ષથી કરાવો છો, આપનો ખૂબ આભાર સાહેબજી। અને ખાસ કરીને એક મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થી તરીકે અમે ખૂબ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ કે સાહેબજી જ્યારે પણ આપનું માંગલિક સાંભળવા મળે અમને, અને ખાસ કરીને તો તે પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય ત્યારે અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ આવી જાય। ખૂબ આભાર સાહેબજી આપનો। અમારા પર આશીર્વાદ વરસાવતા રહેજો। પ્રણામ। જય જિનેન્દ્ર મિત્રો। આપણે છેલ્લા 4 વર્ષથી સતત સુરતથી આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળાનું આયોજન કરી રહ્યા છે કે જે દેશ વિદેશમાં ઘણા પ્રબુદ્ધ વક્તાઓ, વિદ્વાન વક્તાઓ જે જુદા જુદા વિષયો પર આધ્યાત્મિક વ્યાખ્યાનો રેલાવે છે, અને જેને પ્રબુદ્ધ શ્રોતાજનો સમગ્ર દેશ અને વિદેશમાંથી જેનું રસપાન કરી રહ્યા છે, એ તમામનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અને 1 મિનિટની ખાલી હું અમારી વાત કરી અને તરત જ આપણે મોક્ષાનંદ વિજયજી મહારાજ સાહેબ કે જેઓ આપણને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ગુરુ ભગવંત આત્મ વિજયજી આત્મારામજી વિજય આત્મારામજી મહારાજ સાહેબ પર આપણને એમનું જીવન અને કવન કે જે બહુ જ ક્રાંતિકારી છે તેના વિશે ફરમાવશે। તે પહેલા 1 મિનિટ જરાક સહેજ વાત કરી અને હું નરેશભાઈ કાપડિયાને તરત જ આ સ્ટેજ સુપ્રત કરીશ। મિત્રો, આપણે આપ જાણો છો તેવી રીતે 4 વર્ષથી આજે લગભગ એમ કહું તો ચાલે કે 16 દરરોજ દર વર્ષે 16 8:30 થી 9:30 આ સ્પર્ધા હવે આજથી 8 દિવસ ચાલુ થશે। આ વર્ષે 16 બહુ જ પ્રબુદ્ધ વક્તાઓ ભારતમાંથી જ નહીં પરંતુ અમેરિકાથી પણ પધારી રહ્યા છે। ખાસ કરીને ન્યૂ જર્સી અને કેલિફોર્નિયાથી પણ આ વર્ષે આપણી વચ્ચે વિદ્વાન વક્તાઓ ફરમાવશે। 2 પદ્મશ્રીઓ પણ આપણને વ્યાખ્યાન આપશે। 2 મહારાજ શ્રી ભગવંતો પણ વ્યાખ્યાન પ્રવચનો આપશે। અને આ ઉપરાંત પણ જેને ગુજરાત સરકારની અંદર ચીફ સેક્રેટરી તરીકે બહુ જ યશસ્વી સેવાઓ પ્રદાન કરી છે એવા શ્રી પી.કે. લહરી સાહેબ અને ઝા સાહેબ, એવો ભાગ્યેશ ઝા સાહેબ, એવો પણ આપણને ફરમાવશે વ્યાખ્યાન। તો એ બધાનો લાભ દરરોજ જે 8:30 થી 9:30 લેવાનું ચૂકાય નહીં, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। તમારા આસપાસના પડોશના મિત્રોને અને સગા સંબંધીઓને અને આપના સંઘમાં અને ગ્રુપ્સમાં
આની લિંક કે જે 8 દિવસની એક સરખી છે તે મેં મૂકવા પ્રયત્ન બધે કર્યો છે, પણ આપ જરૂરથી એને ફોરવર્ડ કરજો અને વધુના વધુ લોકોને આમાં જોડાય તેવા આપ પણ મારી સાથે પ્રયત્ન કરજો. આની સાથે આપણી આ વર્ષે ઘણી બધી સંસ્થાઓ પણ જોડાયેલી છે, એમની વાત આપણે વચ્ચે કરીએ, કારણ કે અત્યારે આપણે મોડા થઈ રહ્યા છીએ. એટલે આજે આ ઉપરાંત અમે ઘણી બધી બીજી પ્રવૃત્તિઓ પણ વિરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરીએ છીએ, અને તે છે જૂન જુલાઈ મહિનામાં યોગાસન ચેમ્પિયનશિપ, ત્યાર પછી આપણી સંસ્કૃતિ મુજબનો નવરાત્રિમાં ગરબા મહોત્સવ, ત્યાર પછી આપણી કલા સંસ્કૃતિ એટલે કે રંગોળી, તેનું ટ્રેનિંગ ક્લાસીસ, તેની પ્રદર્શન અને તેની સ્પર્ધાઓ પણ યોજીએ છીએ. ત્યારબાદ દિવાળીમાં 8 દિવસ પ્રદર્શન ચાલતું હોય છે, અને ત્યાર પછી સુપર સ્પીકર એન્ડ સુપર કલ્ચરલ કોન્ટેસ્ટ છેલ્લા 29 વર્ષથી સતત ચાલતું હોય છે, અને આ વર્ષે પણ 29મો એનો વર્ષ છે, તે એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એમાં બધા સ્કૂલ કોલેજના બાળકો ઉપરાંત શિક્ષકો અને ઓપન વિભાગ 4 વિભાગ હોય છે, એ બધાને આપ એમાં જોડવા પ્રયત્ન કરજો. આ ઉપરાંત આપણે આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળાની પહેલા પર્યુષણ પર્વની સ્પર્ધાઓ, પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે જૈન સુપર સ્પીકર એન્ડ જૈન સુપર કલ્ચરલ કોન્ટેસ્ટ પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી કરી રહ્યા છે, કે જેમાં જુદી જુદી 5 પ્રકારની સ્પર્ધાઓમાં સેંકડો બાળકોથી માંડીને મોટા આબાલ વૃદ્ધ તમામ 4 ગ્રુપમાં ભાગ લે છે. એમાં પણ આપણા બાળકને પાઠશાળાઓના ગ્રુપોને ભાગ લેવા માટે પ્રયત્ન કરાવજો. અને જૈન સુપર સ્પીકર અને સુપર કલ્ચરલ કોન્ટેસ્ટ પછી આપણે છેલ્લે મે મહિનામાં સુપર સમર કેમ્પના ટ્રેનિંગ ક્લાસીસનું પણ આયોજન કરીએ છીએ. તો આ બધામાં આપ જરૂરથી જોડાજો. વધુ વિગત માટે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકાય છે. તો આપ સર્વેનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે, અને આટલી ટૂંકી પ્રસ્તાવના પછી આપણે વચ્ચે જ્યારે જ્યારે વાત મળશે ત્યારે વાત કરતા રહીશું. સાહેબજીને હું આમંત્રણ આપું છું, અને તે પહેલા નરેશભાઈને સાહેબજીને આમંત્રણ આપવા માટે વિનંતી કરું છું. ભદ્રેશભાઈ, સાહેબજી એમનો પ્રવચન શરૂ કરે એ પહેલા એમના વિશે ટૂંકમાં કંઈ કહેવા માંગતા હતો. નિત્યાનંદજી વિજયજી મહારાજ સાહેબ, એટલે કચ્છાધિપતિ નિત્યાનંદજી સાહેબજી, અને મોક્ષાનંદ વિજય મહારાજ સાહેબ અત્યારે લુધિયાણા સ્થિત છે. એમનું આ ચાતુર્માસ લુધિયાણામાં પંજાબ છે. આમ પણ પંજાબ સાથે સાહેબજી, મોક્ષાનંદજી સાહેબજી તો પંજાબના જ છે, નિત્યાનંદજી પણ પંજાબના છે, એટલે ત્યાંનો એમનો વધારે નાતો છે એવું કહી શકાય. આ સાહેબજીએ જે કાર્યો કર્યા છે એ ગણાવવા તો મુશ્કેલ છે નરેશભાઈ, કારણ કે નિત્યાનંદજી મહારાજ સાહેબ એ પરંપરામાંથી આવે છે કે જેમાં શિક્ષણ અને સંસ્કાર ને સૌથી વધુ મહત્વમાં આપવામાં આવે છે. તમામ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના તેઓ પ્રેરક છે, અને આજની તારીખે પણ નિત્યાનંદજી સાહેબજી એટલો જ સક્રિય એમાં ભાગ લે છે. મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની દરેક પ્રવૃત્તિમાં તેઓ હંમેશા પ્રેરણા આપતા રહે છે. સુરતમાં હાલમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની કન્યા છાત્રાલયના બિલ્ડિંગનું કામકાજ જોરમાં ચાલી રહ્યું છે, અને પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ જૂનમાં એ કન્યા છાત્રાલય શરૂ થઈ જશે. મને ત્યારે ખાતરી છે કે સાહેબજી આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે મોક્ષાનંદજી સાહેબજી તો અદ્ભુત વક્તા છે સાહેબજી, એટલે આપણે હવે એમને સાંભળીએ. વધારે ટાઈમ નો હું લઉં તે પહેલા, અને સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ આપ વ્યાખ્યાન ફરમાવો. श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज
मरालाहते नमः। आत्मात्रं गुणागार वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। आज की व्याख्यान माला में जुड़े हुए सभी भाग्यशालियों को आज एक ऐसे महान विद्वान, एक ऐसे योगी, एक ऐसे क्रांतिकारी संत, एक ऐसी विश्व की विरल विमल विभूति के विषय में आप सभी को कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी की पाठ परंपरा में एक समय ऐसा आया कि जब यह पाठ परंपरा आचार्यों के बिना ही चली, जबकि परमात्मा महावीर से जब पूछा गया कि प्रभु आप अंतिम तीर्थंकर हैं और आपके पश्चात इस अवसर्पणी काल में और कोई भी तीर्थंकर अभी नहीं होने वाले, तो आप जैसे तीर्थंकर रूपी सूर्य के अस्त हो जाने के बाद बहुत सारी बातें हो गई, केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा भी नहीं रहेंगे, तो केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा के भी अस्त हो जाने के बाद इस धरती को कौन प्रकाशित करेगा? क्योंकि सूर्य और चंद्र के अभाव में घोर अंधकार छा जाएगा। तो प्रभु तीर्थंकर और केवली भगवंतों के अभाव में किस तरह से आपका शासन चलेगा? और उस समय परमात्मा महावीर स्वामी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मेरा यह शासन 21,000 वर्षों तक चलने वाला है। और परमात्मा ने कहा, अथमिये जिन सूरज केवल वंदी जे जग दीवो, भुवन पदार्थ प्रकटन पटुते, आचारज चिरंजीवो रे भविका, आचारज चिरंजीवो। कि अरे इस जगत में समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले तीर्थंकर भगवंतों के अभाव में और केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा के अभाव में जो सूर्य भगवंत होंगे, आचार्य भगवंत होंगे, वह एक दीपक की भांति वह पदार्थों को प्रकाशित करेंगे, अंधकार को दूर करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। और मेरा जो शासन है 21,000 वर्षों तक ऐसे महान प्रतापी आचार्य भगवंतों के कारण ये निराबाध रूप से चलता रहेगा। और भगवान महावीर की परंपरा में एक से बढ़कर एक महान धुरंधर आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने अपने समय में उन परिस्थितियों में जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना करी। और इसी परंपरा में 61वें पाठ पर आचार्य भगवंत श्री सिंह सूरी जी महाराज हुए। और सिंह सूरी जी महाराज के बाद जो पाठ परंपरा 61 से लेकर के और 72 तक चली, सिंह सूरी जी के बाद कोई भी आचार्य भगवंत इस शासन को नहीं मिले। हमारी ये तथागत की अखंड परंपरा भगवान महावीर से निर्ग्रंथ
परंपरा के रूप में प्रारंभ हुई श्रवण परंपरा जब तपागच्छ के रूप में परिवर्तित हुई और तपागच्छ की यह परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते 61वें पाठ तक पहुंची और उसके बाद पन्यास और गणि भगवंतों के माध्यम से 72 पाठ तक ये परंपरा चली और उसके बाद 73वें पाठ पर एक ऐसे युग प्रधान अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष का अवतरण इस धरती पर हुआ, जिन्हें हम सभी तपागच्छ के मूल के रूप में, जड़ के रूप में, वर्तमान के अंदर में हम जिनको पूजते हैं, स्मरण करते हैं, और वे महायोगी थे, जंगम युग प्रधान, न्यायाम्बो निधि, नवयुग निर्माता, पंजाब देशोद्धारक, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज, जिनका की प्रसिद्ध नाम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज है। ऐसे आत्माराम जी महाराज लगभग 235 वर्षों से जो आचार्य पद की रिक्तता चली आ रही थी, उस आचार्य पद की रिक्तता को दूर करने का श्रेय ऐसे पूज्य गुरुदेव को जाता है। क्या उनकी प्रतिभा होगी, क्या उनका ज्ञान बल होगा, कैसी सत्यनिष्ठा होगी। जिस युग में लोग सत्य धर्म को भूल चुके थे, अपने जैन पुरातन और सनातन स्वरूप से दूर हो चुके थे, जिस समय लोग जिन मंदिरों और परमात्मा की पूजाओं से दूर हो चुके थे, अपनी धर्म संस्कृति से पीछे हट चुके थे, अंधकार में भटक रहे थे, मिथ्यात्व के महा अंधकार में खो चुके थे, और ऐसे अंधकार में वातावरण में एक दिव्य ज्योति इस धरती पर अवतरित हुई, और वह गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज हमारे तपागच्छ को एक नया स्वरूप दिया, एक नया विस्तार दिया, इसको ज्ञान जल से सींचा, चतुर्विध संघ को पुनः शक्तिशाली बनाया। और गुरुदेव के समय, जिस समय हमारे तपागच्छ में इन्हें चुने साधु रह गए थे, और आज वर्तमान में तपागच्छ में लगभग 10,000 साधु साध्वी आज उपस्थित हैं। तो जब गिने चुने साधु थे, उस समय में गुरुदेव आत्माराम जी महाराज ने जो क्रांति करी, जो सत्य की स्थापना करी, आज उन्हीं के उपकारों के कारण वर्तमान में 10,000 के करीब साधु साध्वी जी भगवान विचरण कर रहे हैं। और वर्तमान में जितने भी हमारे तपागच्छीय समुदाय हैं, उनमें से लगभग 90% साधु साध्वी जी आत्माराम जी महाराज का ही परिवार है। आत्माराम जी महाराज जिस तरह से हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, वीर कुल में जन्म लेते हैं, और आत्माराम जी महाराज का जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिताजी गणेश चंद जी, वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी माता रूपा देवी, जिनकी कुक्षी से बालक आत्माराम का जन्म हुआ, और जन्म भी एक नए युग को जन्म देने वाला था, एक नवीन क्रांति करने वाला था, एक नए युग का सूत्रपात करने वाला होने से उनका जन्म भी चैत्र शुक्ला एकम, जिसे हम नव वर्ष कहते हैं, ऐसे नव वर्ष के दिन चैत्र शुक्ला एकम के दिन गुरुदेव का पंजाब के एक छोटे से गांव लहरा में जन्म हुआ। और बचपन में ही परम मेधावी, बहुत ही गुरुदेव के रूप स्वरूप को देख करके हर कोई आकर्षित हो जाता था। इनके पिताजी सेना में थे, इसलिए अक्सर सेना के कार्य से आना जाना पड़ता था, और पीछे गांव में उनका एक
मित्र था अतर सिंह सोडी, और वह शारीरिक लक्षणों का जानकार था। जब वह बालक आत्माराम को देखता, इनके शारीरिक लक्षणों को देखता, तो वह इस बात से निश्चित था कि ये कोई बालक सामान्य बालक नहीं है। ये बालक या तो राजा बनेगा या राजमान्य गुरु बनेगा। ये बालक बहुत भाग्यशाली है। और अतर सिंह सोडी के कोई संतान नहीं थी। वह चाहता था कि ये बालक उसकी गोद आ जाए, लेकिन इनके पिताजी वह नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा अतर सिंह सोडी की गोद जाए, क्योंकि अतर सिंह सोडी का आचार विचार और जीवन इतना अच्छा नहीं था कि जिससे उनके पिता उस पर विश्वास कर पाते। इसलिए गणेश चंद जी ने अपने पुत्र को उसकी नजरों से बचाए रखने के लिए, उसके चंगुल में न फंस जाए, तो इस कारण से उन्होंने अपने पुत्र को अपने मित्र जो कि लाला जोते शाह जी, जो जैन परिवार से थे, ओसवाल परिवार से थे, और लहरा के पास जीरा गांव में निवास करते थे। वह उनके पास, मेरा बेटा मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, आप बनाइए, ताकि मैं निश्चित रन का कोई भरोसा नहीं है मेरे बाद में, इसके लिए मैं अपने पुत्र को आपको सुनता हूँ। इस तरह से बालक आत्माराम जैन परिवार में आए, लालित पुत्र बना करके, और उनका लालन पालन पोषण किया। जैन परिवार होने से उनके घर में अक्सर साधु भगवंतों का आगमन होता, और उस समय पंजाब की धरती पर स्थानकवासी परंपरा के गुरु भगवंतों का विचरण था। मंदिर आमनाय के गुरु भगवंतों का विचरण नहीं था। पंजाब की धरती उस समय मंदिर मार्गी आमनाय से आपकी धरती पर साधु विचरण करने वाले उस समय नहीं थे, तो केवल एकमात्र स्थानकवासी परंपरा के ही साधु साध्वी उनके जीवन से, उनके आचार विचारों से बालक आत्माराम अत्यंत प्रभावित हुआ। उनके प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसी बातों का श्रवण करके उसके मन में भी संसार की असारता का बोध हुआ, और बालक आत्माराम ने दीक्षा लेने का निर्णय किया। और दीक्षा की आज्ञा लेकर उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में मालेर कोटला पंजाब में मुनि जीवनमल जी महाराज से उन्होंने स्थानकवासी परंपरा में दीक्षा अंगीकार की। प्रत्युत्पन्नमति होने से उन्होंने छोटी उम्र में ही 32 के 32 आगम कंठस्थ कर लिए, और अपने समय में वह परम विद्वान के रूप में उनकी पहचान चारों तरफ फैलती जा रही थी। प्रतिभा, उनकी शक्ति, उनका साहस, उनकी व्याख्यान शैली, उनकी तर्क शक्ति, और उस समय के जितने साधु थे उसमें से सबसे ऊपर आत्माराम जी महाराज से नाम चल रहा था। लेकिन आत्माराम जी महाराज सत्य के खोज वाले थे, और उन्होंने आगमों का जैसे जैसे अध्ययन किया, अनोडन विलोडन किया, और उन आगमों में रहे हुए सूत्रों का बड़ी बारीकी से सूक्ष्मता से अध्ययन करके जब सत्य का स्पर्श किया, तो उस समय उन्होंने एक सत्य की क्रांति के लिए लुप्त हो चुकी मंदिर मार्गी आमनाय को पुनर्जीवित करने का उन्होंने, जैन धर्म की सनातन और पुरातन परंपरा को पुनर्जीवित करना है। मुझे
जैन धर्मावलंबियों को परमात्मा से जोड़ना है, देव मंदिरों से जोड़ना है, पूजाओं से जोड़ना है, आगम के पन्नों में, आगम के सूत्रों में मंदिर, मूर्ति और तीर्थों का वर्णन है। और इस तरह से उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब मुझे सत्य की क्रांति करनी है, और इसके लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े, कितना भी विरोध सहना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए वो तैयार थे। और इस तरह से उन्होंने अपने साधुओं को और श्रावकों को आगमों के पाठ प्रस्तुत करके और उनकी श्रद्धा को पुनः स्थिर किया। और उसके बाद एक के बाद एक नवीन क्रांति होती गई और सभी के हृदय में परमात्मा, गुरु और धर्म की स्थापना होती गई। ऐसी स्थिति में चारों तरफ जब विरोध ही विरोध होने लगा उनका, तो उस समय अत्यंत संघर्ष भरे काल में उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए। और यहां तक कहा जाता है कि उनके लिए ना तो गोचरी पानी की कहीं व्यवस्था होती थी, ना कहीं रहने की व्यवस्था होती थी। और ऐसे संघर्ष काल में उनके जीवन के हजारों दिन ऐसे निकल गए जब उन्हें गोचरी तो दूर, उनको पानी तक प्राप्त नहीं हुआ। 2010-100 दिन नहीं, हजारों दिनों तक उनको प्रासुक आहार और पानी प्राप्त नहीं हुआ। નરેશભાઈ, શું પ્રોબ્લેમ છે? મહારાજ સાહેબ તરફથી આવતો અવાજ અને લિંક ડિસ્ટર્બ થઈ છે, એમનો બેન્ડવિડ્થ લો છે એવો મેસેજ પણ આવે છે. પારુલબેનના પરિવારને વિનંતી, આપના માઇક બંધ જ રાખજો, સૌ કોઈના માઇક બંધ રાખજો, જેથી મહારાજ સાહેબને સ્પષ્ટ સાંભળી શકાય. તેઓ પરત થયા છે. મહારાજજી પ્રકાશ. हाँ, उनकी विद्वता की गूंज देश और दुनिया तक पहुंची और उसी का प्रभाव था कि अमेरिका तक उनकी विद्वता के चर्चे पहुंचे। मनीषी हैं जो कि केवल अपने धर्म के नहीं अपितु सभी धर्मों के जानकार हैं। षड दर्शन के वो विद्वान हैं, ज्ञाता हैं। न केवल जैन धर्म अपितु हिंदू दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ईसाई मत हो, मुस्लिम मत हो, कोई भी धर्म और मत और संप्रदाय के ऊपर जिनका पूर्ण अधिकार है, वेद वेदांत के जो जानकार हैं, ऐसे आत्माराम जी महाराज, और उनको शिकागो की विश्व धर्म संसद में भारत से यदि किसी को विधिवत निमंत्रण मिला तो वो स्वनाम धन्य गौरव की बात है कि सन 8 धर्म संसद हुई, उसमें यदि भारत
पहुंचे। हाँ जी, શું કરીએ નરેશભાઈ? વેટ જ હા. કરવું વેટ જ કરવું જોઈએ. અચ્છા, જેવી એમને નેટ ફેસિલિટી ફરીથી શરૂ થશે તરત જ આવી જ જશે. આવી જ ગયા છે. शिकागो की धर्म सभा में पूज्य गुरुदेव का आमंत्रण और अपनी साधु जीवन के आचार मर्यादा के अनुसार उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन विश्व के रंगमंच पर जहां पर सभी धर्म और सभी धर्मों के गुरु प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होंगे, वहां पर जैन धर्म का भी प्रतिनिधि अवश्य होना ही चाहिए। भगवान महावीर के संदेशों और सिद्धांतों को विश्व के रंगमंच पर पहुंचाना ही चाहिए। और गुरुदेव ने उसी समय सौराष्ट्र में महुआ में जन्म ओके। तो जैसे ही वीरचंद राघव जी गांधी पंजाब आए और गुरुदेव ने उनको अपने सानिध्य में रख करके उनको शिकागो के लिए तैयार किया, किस तरह से विश्व धर्म संसद में उन्हें जैन धर्म के लिए प्रभावशाली तरीके से अपनी बात और पहचान को रखना है। और आज दुनिया जानती है उस विश्व धर्म संसद में वीरचंद राघव जी गांधी ने जो कार्य किया और विदेशों में उनके लगभग 535 भाषण हुए और जैन धर्म का जय जयनाद हुआ। जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय गुरुदेव विजयानंद सूर्य जी महाराज को जाता है। और विजयानंद सूर्य जी महाराज ने जैन धर्म की इस पुरातन और सनातन परंपरा को पुनर्जीवित किया और साथ ही भगवान महावीर के द्वारा प्रारूपित जो जैन मुनि का वेश और आचार होना चाहिए उसके लिए उन्होंने पंजाब से बिहार करके वह गुजरात पधारे, अहमदाबाद पधारे और अहमदाबाद में विराजमान सद्धर्म संरक्षक महामुनिराज श्री बुद्धि विजय जी महाराज, बूटे राय जी महाराज उनके चरणों में आए और अपने साथ में वह 16 साधुओं को पंजाब से साथ लेकर के आए और सभी ने
बूटे राय जी महाराज के चरणों में समर्पण किया और निवेदन किया कि हमें श्रमण परंपरा में संविघ्न दीक्षा प्रदान कीजिए, समय की दीक्षा प्रदान कीजिए। और इस तरह से आत्माराम जी महाराज और 16 साधुओं ने समय की दीक्षा को धारण किया। और समय की दीक्षा लेने के बाद में बुद्धि विजय जी महाराज ने उनका नामकरण मुनि आनंद विजय के रूप में किया। तो इस तरह से आनंद विजय जी महाराज ने पालिताना, गिरनार इत्यादि तीर्थों की यात्रा करी, भावनगर, अहमदाबाद में चातुर्मास किए। और वहां पर भी जो भी जैन धर्म के अंदर में शिथिलताएं आ चुकी थी, जो ज्ञान की कमी हो चुकी थी, उनको उन्होंने अपने ज्ञान बल से दूर किया। और पालिताना की पुण्य धरा पर संवत 1943 का उनका चातुर्मास हुआ। और उस चातुर्मास के बाद भारत के सकल जैन समाज ने, सारे चतुर्विध श्री संघ ने उस समय निर्णय किया कि एकमात्र यदि कोई आचार्य पद के योग्य कोई विभूति इस समय उपस्थित है तो यही महापुरुष हैं और इन्हें हमें आचार्य पद से अलंकृत करना चाहिए। और उस समय 35,000 की जनमेदनी पालीताना में उपस्थित हुई। आज कोई भी फंक्शन हो 5,000, 10,000 मेदनी उपस्थित हो जाती है, लेकिन गुरुदेव को आचार्य पदवी देने के लिए 35,000 की जनमेदनी पालीताना में उपस्थित थी। जब कोई इतने साधन नहीं थे, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों में आते थे, लोग पैदल यात्रा करते थे, तब इतनी कोई ट्रेनें, बसें, कारें, हवाई जहाज नहीं होते थे। और उस जमाने में गुरुदेव को आचार्य पाठ परंपरा अखंड रूप से पुनः प्रारंभ हुई। गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, क्योंकि उस समय भगवान की था। तो गुरुदेव ने आगमों से मोती चुन करके निर्माण किया, उनके बाद करी। उसके बाद जैन तत्वादर्श की उन्होंने रचना करी। अज्ञान तिमिर भास्कर नामक ग्रंथ की रचना करी। सम्यक्त्व शल्योद्धार की उन्होंने रचना करी। શ્રોતાજનોને વિનંતી કે લુધિયાણાથી બેન્ડવિડ્થનો કોઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે આપણે સાહેબજીનું આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય ત્યાંનો બેન્ડવિડ્થનો, પછી નૌતમ ભાઈ જૈન હાજર હશે હું માનું છું। સાહેબજી પ્રકાશો। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा था कि गुरुदेव ने इतने संघर्ष झेलते हुए और जन सामान्य को परमात्मा की वाणी से जोड़ने के लिए उस काल में एक से बढ़कर एक ग्रंथों की रचना करी, जिनके लिखे हुए ग्रंथ बड़े अद्वितीय हैं, अनमोल हैं, आज जैन शासन की बहुमूल्य धरोहर हैं। और उनके ग्रंथों में नवतत्व ग्रंथ जो उन्होंने बिनोली यूपी में प्रारंभ किया और बड़ौत में पूरा किया, जैन तत्वादर्श गुजरातवाला में प्रारंभ किया, होशियारपुर में पूरा किया, अज्ञान तिमिर भास्कर अंबाला में प्रारंभ किया और खंबात में पूरा किया, सम्यक्त्व शल्योद्धार ग्रंथ अहमदाबाद में प्रारंभ, जैन मत वृक्ष सूरत में उन्होंने इस ग्रंथ का
पूरा किया। चतुर्थ स्तुति निर्णय प्रथम भाग, ये राधनपुर में गुरुदेव ने इस ग्रंथ का शुभारंभ किया और राधनपुर में ही इसे पूरा किया। चतुर्थ स्तुति निर्णय द्वितीय भाग, इसे पट्टी पंजाब से प्रारंभ किया और पट्टी पंजाब में इस ग्रंथ को पूरा किया। जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तर, इस ग्रंथ का गुरुदेव ने पालनपुर में प्रारंभ किया और इसकी समाप्ति भी गुरुदेव ने पालनपुर में ही की। शिकागो प्रश्नोत्तर, इस ग्रंथ का निर्माण गुरुदेव ने अमृतसर में किया और इस ग्रंथ की पूर्ति भी गुरुदेव ने अमृतसर में ही की। तत्व निर्णय प्रसाद, इस ग्रंथ का निर्माण गुरुदेव ने जीरा में प्रारंभ किया और गुजरानवाला में इस ग्रंथ को पूर्ण किया। इसके बाद में गुरुदेव ने ईसाई मत समीक्षा नामक ग्रंथ की रचना करी और जैन धर्म का स्वरूप, इसकी भी रचना करी। गुरुदेव लेखक भी थे और साथ में गुरुदेव बहुत अच्छे गायक थे। गुरुदेव बहुत अच्छे जानकार, चित्रकार और स्तवन, स्तुति, सज्जाए और पूजाओं और छंद काव्यों के निर्माता भी थे। गुरुदेव ने अपने जीवन में सैकड़ों सैकड़ों पूजाओं, स्तवनों, छंदों, काव्यों की रचनाएं करी हैं। गुरुदेव के प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, आत्म बावनी बिनोली में प्रारंभ किया, बिनोली में पूरा किया। स्तवनावली अंबाला में प्रारंभ किया, अंबाला में पूरा किया। 70वें पूजा, आज जैन धर्म जहां जहां पर भी जैन धर्मावलंबी रहते हैं, चाहे देश में या विदेश में, कोई भी प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो प्रतिष्ठा के अगले दिन 70वें पूजा पढ़ाई जाती है। कोई भी महोत्सव होता है या जिन मंदिर की ध्वजा होती है तो ध्वजा के प्रसंग पर 70वें पूजा पढ़ाई जाती है। और वह 70वें पूजा और किसी की नहीं, इन्हीं महापुरुषों की रची हुई वो पूजा है 70वें पूजा, जो आज देश और दुनिया के अंदर में सब जगह पढ़ाई जाती है। उसके रचनाकार हैं गुरुदेव आत्माराम जी महाराज। इसके बाद गुरुदेव ने 20 स्थानक पूजा की रचना करी बीकानेर में और बीकानेर में पूरा किया। अष्ट प्रकारी पूजा की रचना पालीताना में की और पालीताना में पूरा किया। नवपुर पूजा की रचना पट्टी में शुरू करी और पट्टी में ही इस पूजा को पूरा किया। और सनातन पूजा की रचना गुरुदेव ने पंजाब के जंडियाला गुरु में करी और जंडियाला गुरु में से पूरा किया। गुरुदेव ने अपने जीवन के 21 चातुर्मास स्थानकवासी परंपरा में किए और 21 चातुर्मास गुरुदेव ने मंदिर मार्गी आमनाई के अंदर में किए। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम को स्वीकार किया और 59 वर्ष 59 दिन का सर्वायु पाल करके और वह गुजरानवाला से वह सदा सदा के लिए विदा हो गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक जिन मंदिरों के निर्माण करवाए, देव मंदिरों से जन जन को जोड़ा, पूजाओं से जोड़ा, पूजा के रहस्यों से सबको परिचित करवाया। और गुजरानवाला में जब वो पधार रहे थे उस समय उनके शरीर के ऊपर में भयंकर बीमारी ने हमला बोला, श्वास का रोग बढ़ने लगा और गुरुदेव की एक ही भावना थी कि अब मुझे गुजरानवाला जा करके सबसे पहले अब मुझे सरस्वती मंदिर की स्थापना करनी है। जिन मंदिरों का निर्माण तो तभी सफल होगा जब उसके साथ सरस्वती मंदिरों की स्थापना की जाएगी। क्योंकि वीरचंद राघव जी गांधी जब अमेरिका शिकागो से लौट करके वापिस आए और आकर के गुरुदेव को सारी बात बताई कि ये जो ईसाई मिशनरीज हैं ये किस तरह से भारत में आने के बाद यहाँ पर अपने स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, चर्च और ये सब चीजें खोलने के बाद में वो हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरह से वह कैप्चर करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से वह अपने धर्म के अंदर में परिवर्तित करेंगे और उनके मिशन को समझ करके। और गुरुदेव ने इस चीज को, इसके भय को भांप लिया कि यदि समय रहते, यदि हमने अपनी शिक्षण संस्थाएं नहीं स्थापित करी, हमने अपने गुरुकुल स्थापित नहीं किए, अपनी पाठशाला स्थापित नहीं की, तो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वह इन मिशनरीज के माध्यम से वह अपने धर्म से, संस्कारों से दूर होते जाएंगे और हमारे ये मंदिर, हमारे ये तीर्थ, हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। और गुरुदेव ने इस चीज को देख करके और मन में ठान लिया था कि केवल मंदिरों से नहीं, इसके साथ साथ सरस्वती मंदिरों से ही हमारी भारत की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और गुरुदेव सरस्वती मंदिर की स्थापना की भावना से गुजरानवाला पहुंचे और श्वास का रोग
समय आ गया है और उसी समय उन्होंने सभी से क्षमा याचना करी और अंतिम वाक्य में उन्होंने गुरु वल्लभ को अपने मानस पुत्र वल्लभ से कहा कि वल्लभ, तुम्हें लुधियाना वाली बात याद है ना? वल्लभ, मैंने श्रावकों की श्रद्धा को स्थिर करने के लिए देव मंदिरों का, जिन मंदिरों का निर्माण करवा दिया, लेकिन उन श्रावकों की श्रद्धा को स्थिर स्थायित्व रखने के लिए तुम्हें अब सरस्वती मंदिरों का निर्माण करवाना होगा। और वल्लभ गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव, आपकी भावना और आपका आदेश जीवन के अंतिम पल तक मैं निभाऊंगा। और इस तरह से गुरुदेव आत्माराम जी महाराज साहब ने कहा कि लो भाई, अब हम चलते हैं और सबको खमाते हैं। ओम अरहम कह करके वे सदा सदा के लिए इस जगत से विदा हो गए। एक ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया, जो हमें जगाने के लिए आया था, हमें सन्मार्ग दिखाने के लिए आया था, जिन्होंने हमारे लिए अनेक संघर्ष झेले, हजारों दिन तक जिनको गोचरी पानी नहीं मिला, रहने के लिए स्थान नहीं मिले, और उसके बावजूद अनेक राजाओं को प्रतिबोध दिया, अनेक तीर्थों के उद्धार किए, मंदिरों के निर्माण करवाए, अनेक ग्रंथों का आलेखन किया, अनेक पूजाओं की रचना करी और स्वयं आत्मा से जुड़े रहे। आत्मा राम, वास्तव में सच में जिनकी आत्मा में राम रमे हुए थे। और ऐसे गुरुदेव का अनंत उपकार इस जैन शासन पर हुआ है। वर्तमान में जैन शासन की जो भी जाहो जलाली दिखाई दे रही है, जो धर्म प्रभावना दिखाई दे रही है, जो हजारों साधु साध्वी जी भगवान दिखाई दे रहे हैं, जो चारों तरफ जिन मंदिरों की ध्वजाएं फरकती हुई दिखाई दे रही हैं, वो एकमात्र श्रेय वर्तमान में यदि किसी को जाता है वो ऐसे जंगम युग प्रधान गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज को जाता है। इन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत उनके मानस पुत्र गुरुदेव श्री विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब ने जैन जगत के ऊपर अनंत उपकार किया, जो इतने विद्यालयों की स्थापना करी, जिसमें से महावीर जैन विद्यालय भी एक महान संस्था है। ये भी उन्हीं महागुरुदेवों के सपनों का साकार करने के लिए ही गुरुदेव ने इस विद्यालय की स्थापना की, और जिसमें से हजारों विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करके, संस्कारों को प्राप्त करके आज देश और दुनिया में धर्म संस्कृति के ध्वज को फहरा रहे हैं, जिन पर हमें गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे दूरदृष्टा गुरुदेव, युग सृष्टा गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज, हम जिन्हें वल्लभ सूरी जी महाराज साहब के गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में वल्लभ सूरी जी महाराज साहब को परदादा गुरु थे। आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य थे श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज, और लक्ष्मी विजय जी महाराज के शिष्य थे श्री हर्ष विजय जी महाराज, और श्री हर्ष विजय जी महाराज के शिष्य हुए विजय वल्लभ सूरी जी महाराज। तो पंजाब के ऊपर उनका अनंत उपकार हुआ। पंजाब में उन्होंने जो मेहनत करी, जो धर्म का बाग सजाया, जो यहाँ पर अज्ञानता को दूर किया, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ कभी पूरी नहीं सकते। इनका गुणानुवाद, इनके जीवन की घटनाएं असंख्य हैं, एक एक घटना का कितना वर्णन करें। आज समय नहीं है कि हम अपने विषय को पूरा कर सके। इन महापुरुषों के जीवन सरिता में स्नान करके अपनी आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करें, और इन महापुरुषों के नाम स्मरण से भी हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके दर्शन मात्र से भी हमारे सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसे देवात्मा, पुण्य आत्मा गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज साहब का जीवन हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा का पुंज है, आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं। ऐसे गुरुदेव हम सभी के ऊपर में खूब आशीर्वाद बरसाएं कि हम उनके बताए हुए तप, त्याग, संयम और सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण साधे। उनकी कृपा की वृष्टि चतुर्विद संघ के ऊपर निरंतर होती रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में आज जो व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया, उसमें भी सबसे पहले
ऐसे गुरुदेव का स्मरण किया गया जिन्होंने इस जैन शासन को एक नया रूप दिया और जैन शासन को डंका विश्व में बजाया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन के साथ विराम देता। अद्भुत। दो देयर वर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज सर, कुछ टेक्निकल खामियां की होने के बावजूद भी हमने कुछ जबरदस्त पाया है साहब जी। बीच बीच में थोड़ा आवाज कट हुआ, बैंड विड्थ कम थी, ऐसा कुछ टाइटल आते थे कि इंटरनेट की वजह से और बैंड विड्थ की वजह से हम नहीं सुन पाए आपको, वो हमें लॉस हुआ। मुझे लगता है कि YouTube में ऐसा नहीं होगा साहब जी, और YouTube हमें वापस पूरी देखनी पड़ेगी कि YouTube में हम आपका पूरा लेक्चर सुन सके। लेकिन हमने करीबन सब कुछ सुना और इट वाज जस्ट मिरेक्युलस सर। ये कोई अद्भुत बात थी। और हमको लगता है कि हम आत्माराम जी महाराज का जो नाम ही जानते थे, विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का, आज हमने सचमुच वो क्या थे और हमारे पूरे महावीर जैन विद्यालय के वो जनक थे, उसके विचारों के जनक थे, विचारों जिसने विजय वल्लभ सूरीश्वर में बोए थे और आज इसका इतना बड़ा वटवृक्ष है। तो हम सच में आज पहला व्याख्यान उनका सुन के खूब प्रभावित हुए साहब। आपका खूब खूब आभार साहब जी, आपका खूब खूब आभार मथेन वंदामी सर जी, और आपका आशीर्वाद हमारे सब पर रहे। और पीछे आपके जो फोटोग्राफ लगाए वो आत्माराम जी महाराज का ही है ना? जी जी जी, गुरुदेव आत्माराम जी महाराज का ही है, करेक्ट। और जी, सर जी, दूसरा खाली एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बहुत क्लियर नहीं हुआ कि ओरिजिनली वो सिख समुदाय से थे ना, सिख परिवार नहीं से? नहीं 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 नहीं, सिख समुदाय से नहीं थे, वो क्षत्रिय कुल से थे। क्षत्रिय कुल से, पंजाब के क्षत्रिय कुल से थे। हाँ, वैसे वो तब तो पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस समय पाकिस्तान में कलश करके एक गांव है, कलश। तो इनके जो पूर्वज हैं वो वहां रहते थे, और ये इनके पिताजी महाराजा रणजीत सिंह की सेना में वहां पर एक ऊंचे ओहदे पर थे, इसलिए इनका ट्रांसफर पंजाब लहरा गांव में हुआ था और यहीं पर इनका जन्म हुआ था पंजाब में। तो फिर इनका परिवार यहीं पे बस गया था। और आत्माराम जी के पिताजी, वह युद्ध के कारण, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी तो बार बार सेना के अंदर जाना पड़ता था, अंग्रेजों से युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, तो उनको बार बार घर से बाहर रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक जैन परिवार में सौंप दिया कि जिससे मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए वो जैन परिवार में आए और ये जैन जगत का उद्धार किया। खूब आभार साहब जी। हम तो इसके बारे में वापिस आपके साथ और एक YouTube का वो रखेंगे। और वर्तमान में हमारा जो तपागच है, इसकी जो जड़ें हैं ये पंजाब से ही जुड़ी हुई हैं। चाहे बूटे राय जी महाराज हैं, वो पंजाब से थे, आत्माराम जी महाराज पंजाब से थे, मूलचंद जी महाराज पंजाब से, वृद्धिचंद जी महाराज पंजाब से थे। तो ये सारे जितने भी समुदाय हैं, इनके जो प्रारंभ करता है, इनके जो दादा परदादा गुरु हैं, ये सब पंजाब से ही आए हुए हैं। तो तपागच की वर्तमान जड़ें सारी पंजाब से निकली। अद्भुत बात है, वो आज ही हम जानते हैं आज। खूब आभार साहब जी। और जी, जी। नरेश भाई, हाँ नरेश